وہ جو اپنی کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں پر ان کی سالی کی بارات نہ آنے پر اس کے باپ نے اس کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی اس انچاہی دلہن کو دیکھتا غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اٹھا کر اسے باہر پھینک دے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو اپنی دلہن کو چھوڑ کر فوراً سے اپنا روم بند کرتا لیٹ گیا۔ اس کی ماں ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھ اپنے شوہر پر غصہ کرنے لگی۔ میں اس لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ یہی لڑکی ملی تھی آپ کو میرے بیٹے کے لیے؟ آپ رکھیں اسے اپنے ساتھ، میرا بیٹا اسے کبھی نہیں اپنائے گا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گی۔ یہ کہتی وہ بھی اپنے روم میں جا چکی تھی اور اصغر صاحب اپنی اس بھانجی کو دیکھتے جو کہ اب ان کی بہو تھی۔ آخر تم چل کیوں نہیں رہی؟ میرے بھتیجوں کی شادی ہے اور تم ان کی بارات کے ساتھ ہی نہیں جا رہی؟ اصغر صاحب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھتے کہہ رہے تھے، جو کہ بارات پر جانے سے صاف انکار کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کے بھتیجوں کے ساتھ ساتھ آج میرے بھانجے کی بھی شادی ہے۔ ایک تو آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، دوسرا آپ مجھے بھی روک رہے ہیں کہ میں بھی شادی پر نہ جاؤں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، آپ جائیں اپنے بھتیجوں کی شادی پر، میں تو اپنی بہن کے ہاں جا رہی ہوں۔ کیا سوچے گی وہ، اس لیے آپ اپنے خاندان کو نپٹائیں، میں اپنے کو۔ یہ کہتی وہ دو ٹوک لہجے میں انہیں صاف انکار کر گئی تھی۔ ان کی بات سنتے اصغر صاحب غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ علیان روم میں داخل ہوا تو اپنے ماں باپ کو اس طرح سے سنجیدہ بیٹھا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب بھی ان دونوں کے درمیان کوئی نوک جھوک ہو رہی ہے، اس لیے وہ ان دونوں کے موڈ کو خراب دیکھ اپنے باپ کی طرف بڑھ گیا اور ان کے ساتھ بیٹھتا انہیں دیکھتے بولا، کیا ہوا ینگ مین، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ چل کریں، آج اتنا بڑا خوشی کا موقع ہے اور آپ اس طرح خاموش بیٹھے ہیں۔ چلیں باہر چلیں، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور بارات بھی نکلنے والی ہے۔ میں بس آپ لوگوں کو ہی بلانے آیا تھا۔ موم آپ کیوں نہیں چل رہی؟ آریان کئی بار میں تمہارے باپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ آج میرے بھانجے کی بھی شادی ہے، میرا وہاں جانا ضروری ہے، اور یہاں تم دونوں باپ بیٹا جا تو رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو تو تم بھی نہیں چلے اور اب مجھے بھی روک رہے ہو تم لوگ۔ اپنی ماں کی بات سنتا وہ تسلی بخش لہجے میں انہیں دیکھتے بولا، موم میں تو نہیں روک رہا آپ کو، بس میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ چل رہی ہیں یا نہیں، اور باقی میری بات تو میں کیسے اپنے بھائیوں کی شادی چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلوں؟ یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ آپ جائیں، میں آپ کو نہیں روک رہا، اور باقی رہی ڈیڈ کی بات تو انہیں میں سنبھال لوں گا، آپ خوشی خوشی جائیں۔ یہ کہتا وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتا باہر جانے ہی لگا تھا جب پیچھے سے نگین بیگم نے اس آواز لگائی، آلیان ویسے تو مجھے پتا ہے کہ تم نہیں آؤ گے، لیکن اگر تمہیں تھوڑا سا بھی اپنے ماں کے ساتھ پیار ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی کزن کی شادی پر آ جانا۔ اپنی ماں کی بات سنتا ایک نظر انہیں دیکھتا پیچھے مڑتے بولا، کوشش کروں گا لیکن پکا ہاں نہیں کر سکتا، اگر ہو سکا تو آ جاؤں گا، باقی آپ انجوائے کیجیے گا، پھر ملتے ہیں واپسی پر۔ یہ کہتا وہ اپنے باپ کے ساتھ باہر جا چکا تھا۔ بارات نکل چکی تھی کیونکہ سفر بھی تو اتنا لمبا تھا، تقریباً 5 گھنٹے مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ لڑکی والوں کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ بارات کا اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ علیان جو کہ بیچ میں ان دونوں کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا اسٹیج کی طرف دیکھتا مسکراتے بولا، واہ بھائی آپ لوگوں کی دلہنیں تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہیں، لگتا ہے وہ بھی آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ اب آپ جلدی سے جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی دلہن مجھے ہی کوستی رہیں کہ میں ہمیشہ آپ دونوں کے ساتھ چپکا رہتا ہوں۔ یہ کہتے وہ مسکرا دیا تھا تو اس کی بات سنتے اسد اور مصطفیٰ نے اس کی سر پر چپت لگائی تھی، چپ ڈرامے باز کہیں کے، کیسے ہم پر احسان جتلا رہے ہو، اور وہ کون ہوتی ہیں ہمیں تم سے دور کرنے والی؟ تم تو ہمارے چھوٹے بھائی ہو اور ہمیشہ ہماری جان تم میں بستی رہے گی، کسی کے آنے سے تمہاری ویلیو تھوڑی کم ہو جائے گی۔ ان کی بات سنتا وہ مسکرا دیا، جی جی مجھے بھی پتا ہے، بس مذاق کر رہا تھا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ہمیشہ مجھے ہی پہلے نمبر پر رکھیے گا اور اپنی بیویوں کو بھی پہلی رات سمجھا دیجیے گا کہ وہ ان سے مقابلے بازی نہ کریں۔ ہاں بابا سمجھا دیں گے، اب ہم جائیں؟ جی جی جا سکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ ان کا ہاتھ چھوڑتا سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی دلہنوں کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ خوش گپیوں میں لگ گئے، ان کے ساتھ صوفے کے ساتھ ہی الگ بیٹھی وہ انگلیاں مروڑتی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے زیادہ ہنگامے کی عادت نہیں تھی، باری باری سب باقی دونوں دلہنوں پر پیسے وارتے انہیں مبارکباد دے رہی تھیں، لیکن وہ اکیلی بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی اس کی ماں اسٹیج پر آئی تو اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو پیار کرتی وہ اس کی طرف بڑھنے ہی لگی تھیں جب پیچھے سے کسی نے انہیں آواز لگائی، عارفہ تمہاری بڑی بیٹی کی بارات کب تک آئے گی؟ صبح سے بیچاری اکیلی بیٹھی ہے، پتہ نہیں ٹائم تو ان لوگوں نے یہی بتایا تھا لیکن ابھی تک آئے نہیں، خیر آ جائیں گے۔ یہ کہتی وہ شال کی طرف بڑھ گئی تھی، اس کا چہرہ اوپر کرتی اسے دیکھتی بولی، بیٹا بور تو نہیں ہو رہی تم؟ اپنی ماں کی بات سنتی وہ ان کی لاج رکھتی نفی میں سر ہلا گئی، نہیں امی بور تو نہیں ہو رہی، لیکن بیٹے بیٹے میں تھک چکی ہوں۔ اچھا بیٹا تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، پتہ نہیں کیوں وہ لوگ دیر کر رہے ہیں، میں تمہارے لیے جوس بھجواتی ہوں۔
یہ کہتی وہ اس کے سر پر پیار کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ علیان جو کہ ابھی اسٹیج پر آیا تھا وہ اپنے دونوں بھائیوں کو چھیڑتا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ایک نظر اشال کو دیکھتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس طرح گھبراتا دیکھ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتا اس کے کان کے قریب ہوتا بولا، کیا ہوا، آپ کا دلہن نہیں آ رہا کیا، کہیں وہ بھاگ تو نہیں گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ شال کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوتی علیان کو دیکھنے لگی۔ پریشان نہیں ہوں، میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ مجھے کیا پتا کہ آپ کے سسرالیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی تک نہیں آ رہے۔ ویسے آپ اچھی لگ رہی ہیں، ورنہ ہمیشہ تو آپ سادہ سہولیوں میں رہتی ہیں، اس کے مقابلے میں آج پیاری لگ رہی ہیں، لیکن حرین اور زارا کے مقابلے میں تو آپ بالکل زیرو لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس پر طنز کر رہا تھا اور وہ کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے چپ ہی کر گئی۔ ویسے دیکھیں، میں نے کہا تھا اسد بھائی کو کہ آپ سے شادی کر لیں وہ، لیکن نہیں مانے۔ میں نے کہا جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں اور تم بھی سب اپنوں کو پیار سے الوداع کہہ کر جانا، بعد میں پھر ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ترستے ہی نہ رہ جاؤ، باقی آپ بیٹھیں، اب نہیں چلا۔ یہ کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اسے جاتا دیکھ صرف آہ بھر کے رہ گئی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کا کزن ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا، قسمت کو جو منظور، لیکن صحیح تو کہہ رہا تھا۔ اپنے کزن میں سے کسی نے اس کا رشتہ نہیں لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ آج گھیروں میں جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو جب وشال کے باپ نے دلہے والوں کو کال کی تو پہلے تو وہ کال ہی نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن بعد میں وہ کال اٹھا کر کہتے کہ وہ بارات نہیں لا سکتے کیونکہ لڑکا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس نے اسی سے نکاح کر لیا ہے۔ سب حیران ہوتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، سب پریشان سے تھے۔ عارفہ بیگم کا تو ٹینشن سے سر پھٹا جا رہا تھا، وہ بار بار اپنے ساتھ بیٹھے اپنے خاوند کو دیکھتی زہر کا گھونٹ بھر کے رہ جاتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ ایسے غیروں میں اتنے جلدی رشتہ مت کریں، دیکھ لیا آپ نے کیا نتیجہ نکلا ہے، آج عین بارات کے دن ہی انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اب کیا کریں گے ہم؟ ان کی بات سنتے ایاز صاحب غصے سے بولے، تو کیا کرتا، اپنوں میں سے کسی نے لیا تھا میری بیٹی کا رشتہ؟ سب دونوں چھوٹی بیٹیوں کے لیے رشتہ لے کر آتے تھے، کبھی سوچا تمہارے بھائیوں نے کہ میری بڑی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیتے، لیکن کبھی ان کی زبان سے یہ بات نہیں پھسلی تھی۔ تو میں کیا کرتا، چھوٹیوں کی شادی کر دیتا اور بڑی ایسے بیٹھی رہی، اس لیے میں نے ان کے ساتھ ہی اس کی شادی رکھی کہ کوئی میری بیٹی پر انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، اور دیکھو جس چیز کا مجھے ڈر تھا آج وہی ہوا۔ کیا کمی تھی آخر میری بیٹی میں، یہی کہ وہ فیشنیبل نہیں اور زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ان سب میں بھی تو ہم دونوں کا قصور ہے نا، ہم نے ہی اسے آگے کہیں نہیں پڑھایا تھا اور اپنے ماں باپ کا اظہار کرتی گھرداری میں لگ گئی تھی، خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، یہ کہتے وہ رو دیے تھے۔ باقی دونوں کا تو نکاح ہو گیا تھا، لیکن اشال کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے تھے۔ عارفہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی اصغر کی طرف بڑھ گئیں، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی روتے بولی، اصغر پلیز آج میری لاج رکھو، میری بیٹی کو اپنا لو، تمہاری ہر شرط منظور ہے، لیکن پلیز علیان کو کہو کہ میری بیٹی کو اپنا لے۔ وہ روتے ہوئے ان کے سامنے التجا کر رہی تھیں۔ اصغر صاحب اپنی بہن کو اس طرح روتا دیکھ انہیں گلے سے لگا گئے۔ ٹینشن نہیں لو، کچھ کرتا ہوں میں، یہ کہتے ہی وہ سائڈ پر کونے میں کھڑے فون پر کال پر کسی سے بات کرتے علیان کی طرف بڑھ گئے۔ علیان جو کہ فون پر لگا ہوا تھا اپنے باپ کی بات سنتا، فون کال بند کرتا اور موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتا اپنے باپ کو دیکھتے بولا، کیا ہوا، کوئی کام تھا آپ کو؟ اصغر صاحب کے منہ سے تو کوئی الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ علیان اپنے باپ کو اس طرح خاموش دیکھ ایک بار پھر ان سے پوچھتے بولا، ڈیڈ کوئی بات ہے کیا، بتائیں بیٹا پلیز آج میری ایک بات مان لو۔ اپنے باپ کو اس طرح دکھی ہوتا دیکھ حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا کہ اچانک اس کے باپ کو کون سی بات یاد آ گئی جو اب اس ٹائم وہ اس سے، واٹ ڈیڈ، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اور اشال سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا یہ، اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ سب کروں گا؟ آپ کو بیٹھے بٹھائی یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے بیٹا، اشال کی بارات نہیں آئی تو میں کیا کروں، اگر اس کی بارات نہیں آئی تو یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے لیے قربانی دوں اپنی بیٹے کو اس طرح ہتھے سے کرتا دیکھ ان کا ہاتھ تھامتے انہیں دیکھتے پیار سے بولے، بیٹا کسی نے وہ تمہاری اور تمہاری کو دیکھو، اس کی حالت دیکھنے لائق نہیں ہے، اور پہلی بار اس نے مجھ سے خود آ کر اپنی بیٹی کے لیے تمہیں مانگا ہے، پلیز بیٹا تم سوچو اس بارے میں، اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری پھپھو کا دل ٹوٹ جائے گا۔ واہ ڈیڈ واہ، آپ کو بہن کے دل کے ٹوٹنے کی پرواہ ہے، اور آپ کا بیٹا جسے وہ لڑکی ایک آنکھ تک نہیں پاتی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کروں، تو میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، اور کیسے میں اس سے نکاح کر لوں؟ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی بیویاں اس سے چھوٹی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر لوں، تو ان سب سے چھوٹا ہوں میں، کیا جواب دوں گا لوگوں کو؟ بیٹا وہ عمر میں تو برابر ہے، جو بھی ہو، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، اگر اتنی اچھی تھی تو اسد بھائی اور مصطفیٰ بھائی نے کیوں نہیں شادی کی ان سے؟ انہوں نے بھی تو انہیں نظر انداز کیا تھا، اور میں کیسے ان سے نکاح کر لوں؟ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اصغر صاحب اسودہ سے ہوتی واپس پلٹ گئے تھے۔ عارفہ بیگم انہیں آتا دیکھ ان کی طرف لپکی تھی۔ کیا کہا اصغر علیان نے، وہ مان گیا، بتاؤ نا اسے۔
उसे झंझोड़ती उससे पूछते बोली तो उनकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो बेहोश सी होती सोफे पर ढाई सी गई थी। होश आवाज से बेगाना वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। उनकी हालत को देखते सब ने आलियान की मिन्नत समझ की तो वो जहर का घूंट पड़ता इचाल से निकाह के लिए हाँ कर गया था। निकाह के फौरन बाद ही रुखसती का शोर उठा। बाकी दोनों जोड़ियां तो हंसी खुशी रुखसत हो गई थी। आलियान जो कि निकाह के फौरन बाद ही कहीं गायब हो गया था। असगर साहब उसे बार बार कॉल करते उसे बुला रहे थे। वो अकेली बेटी अब अपने आने वाले कल का सोच रही थी कि आलियान इसके साथ क्या करेगा जो ज़बरदस्ती उसके सिर पर मुसल्लत की जा रही है। अपने बाप के इतना बुलाने पर जैसे ही वो हॉल में एंटर हुआ तो असगर साहब उसे देखते हुए उसके पास लपके थे। आलियान क्या बदतमीजी है ये, कहाँ चले गए थे? तो तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी दुल्हन यहाँ पर वेट कर रही है। ये सफ़र उसे किसी मौत से कम नहीं लग रहा था। कैसे वो हंसी खुशी इस शादी में शिरकत के लिए आया था, लेकिन वापसी पर वो इतना दुखी होकर जाएगा। अगर उसे पता होता तो वो कभी ना आता। अब तो रह रह कर उसे ख्याल आ रहा था कि काश वो अपनी माँ के साथ चला जाता तो आज इतना सब कुछ ना होता। लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। इसलिए अपने साथ बेटी अपनी अनचाही दुल्हन को देखता गुस्से से मोटियाँ भेज गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस शाल को गाड़ी से बाहर फेंक दे। जैसे ही वो घर पहुंचे तो बाकी दोनों दुल्हनों को उनके रूम में बिठा दिया गया। लेकिन इशाल उसका जहाँ सब दुल्हनों का घर में फूलों से वेलकम होते हैं वहाँ उसकी सास उसे देखते ही भड़क उठी थी। वो लियान को गुस्से से भरा आते ही फौरन से रूम में जाता देख उसे पीछे से आवाज़ें देती रह गई। लेकिन वो उनकी बात को अनसुना करता अपने रूम में बंद हो गया था। वो सीढ़ियाँ उतरती जैसे ही नीचे आई तो असगर साहब के साथ दुल्हन बनी शाल को देखती दंग रह गई थी। वो एक नज़र उस पर डालती हैं असगर साहब से पूछते बोली, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आ गई हैं? इसकी तो शादी थी ना आज। हाँ तो हो गई शादी, आ गई है अपने घर में। अपने शौहर की बात सुनती रही बेगम ना समझी से उन्हें देखती बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये हमारी बहू है, हमारे आलियान की दुल्हन। असगर साहब का ये कहना था कि नबीन बेगम गुस्से से भड़क उठी। क्या कह रही हैं आप? आपको यही मिली थी जिसे सबने ठुकरा दिया? आज आप उसे मेरे बेटे के सर मुसल्लत कर गई हैं। बाकी सब घर वाले खड़े तमाशा देख रहे थे। असगर साहब मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये लड़की इस घर में रहे। आपने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा लिया और इस लड़की को बहू बना कर ले आई। लेकिन मैं इसे कभी बहू के रूप में नहीं बर्दाश्त करूंगी। अभी और इसी वक्त निकालें आप इसे इस घर से। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटे की शादी के, और सब चिकनाचूर हो गए। आज अगर मुझे पता होता तो मैं कभी अपने बेटे को आपके साथ ना भेजती। उसको इस तरह गुस्सा करते देख असगर साहब उसे समझाते बोले, नगीन चुप हो जाओ, क्या तुम बच्ची के सामने शुरू हो गई हो? बच्ची? बच्ची है ये? सबसे बड़ी है ये उम्र में और आप इसे बच्ची कह रही हैं? उसकी बात सुनती उनकी जिठानी आगे बढ़ती उसे चुप कराने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ समझने की कोशिश करो। बहू है वो तुम्हारी, और इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम इसे समझ रही हो। उनकी बात सुनती नगीन बेगम उन्हें देखती तंज करती बोली, अगर इतनी अच्छी थी तो आप इसे बहू बना लेती ना। आपने क्यों इसे अपनी बहू नहीं बनाया था? आपने तो दोनों उसकी छोटी बहनों को चुना था और अब आप मुझे सिखा रही हैं कि मैं उसे कुछ ना कहूँ। ये कहती वो एक नज़र सब पर डालती वापिस अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। असगर साहब बेचारे बस ये सब होता देख रहे थे। असगर साहब इशाल के बारे में सोचते कि वह दुल्हन कहाँ सोएगी, इसलिए वो आगे बढ़ते आलियान के रूम का दरवाज़ा बजाते थक गए। लेकिन उसने दरवाज़ा खोलना तो दूर की बात कोई जवाब ही नहीं दिया था। वो मायूसी के साथ उल्टे कदमों वापस मुड़ते अपने भाभी को शाल को किसी रूम में ले जाने का कहते खुद भी अपने रूम की तरफ चल दिए। विशाल रूम में दाखिल हुई होती उस वीरान से रूम को देखने लगी जिसमें शायद कोई नहीं रहता था। मेहमानों के लिए बनाया गया ये रूम उसे काट खाने को दौड़ रहा था। हज़ारों ख्वाब होते हैं लड़की के उसकी शादी की रात बहुत हसीन हो, लेकिन उसके साथ सब कुछ उलट हुआ था। ना उसके दूल्हे ने उसे जी भर कर देखा और ना ही मुंह दिखाई में उसे कुछ मिला। शादी भी तो कैसे हालात में हुई थी उसकी, इसलिए सब कुछ झटकती वो अपनी ज्वेलरी और दुपट्टा उतार कर साइड पर रखती अब अपने लहंगे को देख रही थी, क्योंकि उम, उसके पास कोई ड्रेस नहीं था कि वो चेंज कर लेती। इसलिए अपनी किस्मत का मातम करती वो उस भारी भरकम लहंगे के साथ सोने की भरपूर कोशिश करने लगी। पता नहीं रात के किस टाइम नींद उस पर मेहरबान हो गई और उससे नींद आ गई। आलियान गुस्से के मारे रूम में जाते ही उसने अपनी रूम की सारी चीज़ें तहस नहस कर दी थीं। ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान फर्श पर गिरा चिकनाचूर हो चुका था। वो बेड पर से बेडशीट खींच कर फर्श पर पटकता वैसे ही मैट्रेस पर सो रहा था। उजड़ी शक्ल सुबह तक जो जोशो
खुरम था, अब उसके दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी जिसे ख़त्म करना नामुमकिन था। सुबह जैसे ही शाल की आंख खुली तो वो जल्दी से उठकर सीधी होकर बैठ गई। उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था कि वो नहाकर फ्रेश हो जाती। दिन के 10 बज चुके थे लेकिन कोई उसकी खबर तक लेने नहीं आया था। वो ऐसे ही गुमसुम सी बैठी थी। जब सफिया बेगम एक जोड़ा हाथ में लिए उसके रूम में दाखिल हुई और उसके पास ही बेड पर रखती उसे देखती बोली, ये लो बेटा, सॉरी रात में भूल गई थी तुम्हें कपड़े देना। अब भी ये मैं हुरैन की बरी में से एक ड्रेस निकाल कर तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हारी हेल्थ तो उससे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये उसके कपड़ों में सबसे खुला जोड़ा था, इसलिए मुझे यही मुनासिब लगा तो तुम्हारे लिए ले आई। अब तुम जल्दी से ये पहनकर फ्रेश हो जाओ। ज़ारा और हुरैन तो कब से तैयार हो चुकी हैं और तुम भी अब जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आओ। ये कहती वो वहाँ से जा चुकी थी। उनके जाने के बाद इशार एक नज़र ड्रेस को देखती बुझे दिल के साथ उसे हाथ में पकड़ती नहाने के लिए चली गई। नहा कर वापस आई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल कंघी करती खुद को देख रही थी। क्या किस्मत पाई थी उसने। और तो कुछ था ही नहीं उस रूम में कि वो थोड़ा सा मेकअप कर लेती, इसलिए वो बाल बनाती और सिर पर दुपट्टा लेती सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा उसे नाश्ते के लिए बुलाती जाने ही लगी थी जब विशाल ने पीछे से उसे आवाज़ दी, सब आ गए हैं क्या नाश्ते की टेबल पर। उसकी बात सुनती मुलाजमा उसे देखती बोली, जी छोटी दुल्हन, सब नाश्ते पर आपका वेट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बुला कर आऊँ। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अलियान के बारे में पूछे कि वो भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद है। ये ना हो कि वो विशाल को देख कर ही गुस्सा न करने लग जाए। मुलाजमा के जाने के बाद वो घबराती हुई सीढ़ियाँ उतरती जैसे ही आगे बढ़ी तो नाश्ते की टेबल पर सबको बैठा देख वो एक नज़र सबको देखती वहीं पर रुक गई। हुरैन और ज़ारा जो कि फुल तैयार अपने शोहरों के साथ बैठी खुशी खुशी बातें कर रही थी, वो अपनी दोनों बहनों को इस तरह खुश देख उनको हमेशा ऐसे ही खुश रहने की दुआ देती वो खुद के बारे में सोच रही थी। सबकी नज़रें नाश्ते पर थीं। असगर साहब जिनकी नज़र अचानक सामने खड़ी इशाल पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उसे देखते बोले, इशाल बेटा खड़ी क्यों हो, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। अपने साथ बड़ी कुर्सी घसीट कर उसे बैठने का कहते खुद उसके लिए नाश्ता निकालने लगे। इशाल जैसे ही कुर्सी पर बैठी तो अलियान जो कि दूसरी साइड बैठा था वो इशाल को बैठता देख उससे से चम्मच टेबल पर फेंकता आ, कुर्सी घसीट कर उठ खड़ा हुआ और फौरन से बाहर चला गया। नगीन बेगम अपने बेटे को इस तरह गुस्से में डूबा देख पीछे से बुला गई, आलियान कहाँ जा रहे हो तुम, नाश्ता तो कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता, डैड को कहें जिसकी इन्हें फिक्र है उसी को करवाते रहें, मर गई मेरी भूख। उसे देख कर ये कहता वो गुस्से से बाहर जाने लगा तो पीछे से नाश्ता करते मुस्तफ़ा ने उसे आवाज़ दी, आलियान इधर आओ शराफत से नाश्ता करो तुम, ये क्या तरीका है नाश्ते से उठकर जाने का, तमीज़ नहीं है तुम्हें। सॉरी भाई लेकिन इस मामले में मैं आपकी नहीं सुनूंगा क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ मैं चाह कर भी ये नहीं भूल सकता और प्लीज़ अब आप मुझे फोर्स मत कीजिएगा। ये कहता गुस्से में वहाँ से जा चुका था और उसके जाते ही नवीन बेगम भी एक कड़वीली नज़र इशार पर डालती उठ खड़ी हुई, बिठाई से अपने साथ, जब मेरे बेटे ने नाश्ता नहीं किया तो मैं भी नहीं कर सकती। ये कहती वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। उसकी दोनों बहनें एक दूसरे को देखती बोली, आप भी ना, पता चला आपको कि आपसे कितनी नफरत करता है। तो तो आप ना आती नीचे, देखिए अब बुमानी और आलियान बिना नाश्ते के उठ गए हैं, आप ही रूम में बैठ कर लेती, नीचे आना ज़रूरी था क्या। उन दोनों की बात सुनते असगर साहब विशाल को देखने लगे जो कि इन सब की बातों से हर्ट हो रही थी। क्या हो गया तुम दोनों को, जिसे नाश्ता नहीं करना उसकी मर्जी लेकिन विशाल यहीं पर बैठ कर नाश्ता करेगी, उसका भी अब हक है इस घर पर, तुम चुप करो, ये नाश्ता करो। नाश्ते के बाद इशाल रूम में बैठी हुई थी जब अचानक से हुरैन और ज़ारा हाथ में कुछ चीज़ें लिए उसके रूम में दाखिल हुई और उसके साथ रखती सामने पड़े सोफे पर टांग चढ़ाए बैठी थी। एक अदा से अपने बालों को कान के पीछे डालती अपनी बड़ी बहन को देखते बोली, आपी ये हमारे कुछ कपड़े हैं, हमने सोचा आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा इसलिए ये कुछ चीज़ें लेकर आई हैं हम आपके लिए, ये पहन कर थोड़ा तैयार रहा करें, लोग हमें देखने आते हैं ना तो साथ में आपका भी पूछते हैं। सबको आखिरकार पता चलता जा रहा है कि आप भी इसी घर में अब शादी होकर आई है, तो प्लीज़ अब थोड़ा खुद को बना कर रखा करें। अपनी दोनों बहनों की बात सुनती वो सर हिला गई। अच्छा अभी ये देखें, असद ने मुझे मुंह दिखाई में ये कंगन दिए हैं। हुरैन अपने हाथ आगे करती उसे दिखाने लगी। ज़ारा कहाँ पीछे रहने वाली थी,
उसके हाथ परे करती वो फ़ौरन से अपने गले में पहनी चेन आगे करती वो भी इशाल को दिखाने लगी। "भाभी ये देखिए मुस्तफ़ा ने मुझे चेन दी है, प्यारी है ना ये उन्होंने पहनाई भी अपने हाथों से थी। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। मुझे तो लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, जितना इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है।" उसकी बात सुनते ही हुरैन ने उसे आँखें दिखाईं। "ओह हेलो, तुम्हारा शौहर तो कम होगा, जो उससे मुझसे मोहब्बत करते हैं ना मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। उनका बस चले तो मुझे पैर भी ज़मीन पर ना रखने दें।" वो दोनों ऐसे अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रही थी। विशाल को लगा कि वो सिर्फ अपनी बहन को जलाने के लिए सब कर रही हैं, लेकिन पहल में ही वो ये सब झटकती उनकी खुशी में खुश हो रही थी। दोनों कुछ देर उसके साथ बैठकर अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाती जा चुकी थीं और उनके जाने के बाद विशाल पर बेड पड़ी बड़ी चीज़ों को देखती सिर्फ आह भर कर रह गई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो इस घर में बोझ बनकर आई है और सब लोग उसे सिर्फ बातें ही सुना रहे हैं। उसका भी दिल था, उसके भी कुछ अरमान थे जो कि कहीं दूर मनो मट्टी तले दब गए थे। अभी वो सामान सारा सेट करके अलमारी में रखती अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करती आगे बढ़ने ही लगी थी जब धड़ाम से दरवाज़ा खुलती नगीन बेगम रूम में दाखिल हुई और उससे देखती कड़कदार आवाज़ लहजे में बोली, "ओ हेलो मैडम, अपने माँ बाप के घर में तो सारे घर के काम तुम करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या? तुम सुबह से रूम में छुपी बैठी हो, कोई अनोखी दुल्हन नहीं थी तुम। ज़बरदस्ती मेरे बेटे के साथ बांध दी गई हो तुम भी। अपनी बहनों को देखकर उनकी तरह दुल्हनों वाले नखरे मत करो। जल्दी से चलो, मुलाजमा छुट्टी पर है और खाना सारा तुमने ही बनाना है। शाम को मेहमान आ रहे हैं और खाने का खास ख्याल रखना और डिशेज़ कुछ ज़्यादा बनाना। समझ आई ना तुम्हें कि मैं क्या कह रही हूँ?" उनकी बात सुनते ही शाल सर हिला गई। "जी, जी मम्मानी, आप फ़िक्र मत करें, मैं देख लूँगी सब कुछ। चलो अभी किचन में चलो। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और पता है भी नहीं चलेगा और शाम हो जाएगी, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। बाद में ये ना हो कि तुम्हारा रोना शुरू हो जाए कि टाइम कम था, इसलिए तुम कुछ बता नहीं सकी।" उनकी बात सुनती वो फ़ौरन से किचन में आ गई। वो दुपट्टा कमर पर बांधे खाना बनाने में मसरूफ़ थी। 2 चूल्हे थे किचन में और उसने दोनों चूल्हों पर खाना चढ़ाया हुआ था। कभी वो एक खाने में चम्मच चलाती तो कभी दूसरे को देखती। इतनी गर्मी में उसका बुरा हाल हो रहा था। सफिया बेगम जो कि अभी फ्रिज में से पानी निकालने आई थी, शाल को इस तरह किचन में काम करता देख उसे देखती बोली, "अरे शाल बेटा तुम, आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन था और तुम आज से ही किचन में लग गई हो। 1-2 दिन तो रहने देती बेटा।" उनकी बात सुनती वो मुस्कुरा दी। "नहीं मुमानी, वो मेहमान आने वाले हैं ना, तो नगीन मुमानी ने कहा कि मुलाजमा नहीं आई तो इसलिए खाना मैं बना लूँ, तो इसलिए।" "अरे बेटा मुलाजमा तो आई हुई थी, नगीन ने तुम्हें क्यों कहा?" वो फिर से अपने काम में लग गई तो सफ़िया बेगम उसे देखती ही पलट गईं। शाम के खाने पर सब मेहमानों के साथ बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन वो किचन में खड़ी सबकी आवाज़ें सुन रही थी। सब खाने की तारीफ़ें कर रहे थे। किसी ने भी उससे साथ में खाने को नहीं कहा था। वो चाय चूल्हे पर चढ़ाए अपनी सोचों में मगन थी। आलियान जो कि किचन में हाथ धोने आया था, इशाल को गुमसुम खड़ा देख उसे एक नज़र देखता तंज करते बोला, "सब तुम्हारे खाने की तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन मैंने पता है उन्हें क्या कहा कि तुम्हें सिर्फ़ ये खाना बनाना तो आता है, पर क्या चीज़ होगी जिसमें तुम्हारी तारीफ़ हो, क्योंकि ना तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक है और ना ही तुम्हारी हेल्थ। कितनी मोटी हो तुम। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ अपनी बहनों को देखकर कि तुम उनकी जैसी बनो? लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी बीवी बन गई हो, इसलिए जो मैं चाहूँगा वही तुम करोगी। समझ आई तुम्हें?" उसको इस तरह गुस्सा करता देख वो सर हिला गई। वो एक नज़र चाय के पतीले को देखता उससे पूछे बोला, "चाय बना रही हो? मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मेरे लिए अलग से कॉफ़ी बनाकर मेरे रूम में ले आना। अभी मैं थका हुआ हूँ, तो थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ।" ये कहता वो वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद इशाल सबको चाय देती, उसके लिए कॉफ़ी बनाती, उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करती। जैसे ही रूम में दाखिल हुई, तो अलियान को सामने ही बेड पर आड़ा तिरछा लेटा देख वो उस पर से नज़रें हटाना भूल गई थी। रफ से ट्राउज़र शर्ट में बलबूस वो दुनिया जहान से बेखबर सो रहा था। उसके सिल्की प्यारे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। इशाल का बहुत दिल किया कि उसके माथे पर से बाल हटाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो उसकी कॉफ़ी साइड टेबल पर रखती उसे आवाज़ देने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ तो जैसे अलियान को सुना ही नहीं दे रही थी। बिलाखिर वो उसके कंधे पर हाथ रखती उसे झंझोड़ती उठाने लगी। "अलियान, आपकी कॉफ़ी साइड टेबल पर रखिए, उठा लें, ठंडी हो जाएगी।" वो फ़ौरन से अपनी आँखें खोलता अपने सामने खड़ी शाल को देखता हैरत से बोला, "क्या हुआ? क्यों मेरी नींद ख़राब की तुमने?" वो जैसे ही अलियान को कॉफ़ी देकर उसके रूम से बाहर निकलती, उसके रूम का दरवाज़ा बंद करती जाने ही लगी थी जब नगीन बेगम ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, "इशाल ज़रा मेरे रूम में आना तुम, एक काम है तुमसे।" ये कहती वो आगे चल पड़ी और उनकी बात सुनती इशाल भी उनके पीछे उनके रूम में आ गई। नगीन बेगम जिन्होंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था, वो अपने सामने खड़ी शाल को देखती बोली, "वो ड्रेसिंग टेबल पर ऑयल रखा होगा, मेरे सिर पर लगा दो, सुबह से सर में दर्द हो रहा है।" उनकी बात सुनती ही शाल ड्रेसिंग टेबल से तेल उठाती, उनके सर में तेल डालती, अच्छे से उनके सर का मसाज करने लगी। उनके माथे पर आराम से हाथ चलाती, उनसे पूछते बोली, "मोमानी, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो नीचे लेट जाएँ, मैं आपका सिर दबा देती हूँ।"
आपको सुकून महसूस होगा। रहने दो बीबी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। ये सोच-सोच कर ही मुझे वहशत होती है कि क्या होगा मेरे बेटे का आगे तुम्हें तो वो पसंद तक नहीं करता। कैसे गुज़रेगी तुम दोनों की ज़िंदगी? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें नापसंद करता है, तुम्हारी तरफ आँख उठाकर देखता भी नहीं। और तो और उसने अपने रूम तक भी तुम्हें जगह नहीं दी और तुम ये सब खामोशी से सह रही हो। कुछ तो अपने बारे में सोचो। उनकी बात सुनती हुई उन्हें देखते बोली, मोमानी आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं कभी आप दोनों के रास्ते में नहीं आऊँगी। आपको जो अच्छा लगे आप वही करें। इसकी बात सुनते ही नगीन बेगम हैरत से उसे देखने लगी और उसके हाथ अपने सिर से हटाती बोली, मैं एलियान की शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक जानते भी हैं, लेकिन तुम बीच में आ गई। मेरी बहन अब मुझसे नाराज़ है और मेरी भांजी उसने तो बात तक करना छोड़ दिया मुझसे, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि मुझे तो इन सब का पता नहीं था। अचानक असगर साहब ने अलियान के साथ तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया। अब ये बात मैंने कैसे समझाऊं? तो आप अलियान की दूसरी शादी करवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं जैसे अपने माँ बाप के घर रहती थी यहाँ पर भी मैं ऐसे ही रहूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी मैं आपसे। उसकी बात सुनते ही वो हैरत से उसे देखते पूछते बोली, मैके में और ससुराल में फ़र्क होता है। तुम्हें यहाँ पर हर मोड़ पर अपने शौहर की ज़रूरत पेश आएगी। और अब जो तुम ये कह रही हो ना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाद में तुम ही होगी जिसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत करो जिनको तुम पूरा ही ना कर सको। उसकी आँखों में आए आँसू उसकी बेबसी का मुँह बोलता सबूत थे। वो अपनी आँखों में आई नमी को फ़ौरन छुपाती उन्हें देखती बोली, आप फ़िक्र नहीं करें, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको जो बेहतर लगे वही करें। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। ये कहती वो उठकर वहाँ से आ गई थी। कुछ दिनों बाद आलियान को पता नहीं क्या सूझी थी कि उसने ईशान को अपने रूम में रहने के लिए जगह दे दी थी। लेकिन उसने उसे पहले दिन ही जता दिया था कि वो बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सोएगी और रूम में होते हुए भी वो कभी आलियान से मुखातिब नहीं होगी। अगर आलियान को कोई काम होगा तो वो इससे कह दिया करेगा, लेकिन ईशान को बिला वजह बात करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अनजान लोगों की तरह रूम में रह रहे थे। अभी वो अपना काम निपटाती, उसके लिए कॉफ़ी लाती, साइड टेबल पर रखती, खुद वॉशरूम में जाती, मुँह हाथ धोकर वापस आई तो अनियान को फ़ोन पर किसी से बात करता देख वो सोफे पर अपनी चादर सेट करती लेट गई। कह रहा हूँ ना, नहीं मिल सकता मैं तुमसे। क्या तुम हर वक्त कहती हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानता रहूँ? तो तुम्हारी ताबेदारी मुझसे नहीं होगी। आज तक कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझसे अपना हुक्म मनवा सके। मैं बस अपनी करता हूँ, इसलिए जब मेरा दिल चाहा मैं तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकती। और अब भी मुझे नींद आ रही है, अब मज़ीद मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ फ़ोन रखो और मुझे सोने दो। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था और अपने हाथ में पकड़ी कॉफ़ी को एक नज़र देखता अब अपने सामने लेटी शाल को देखने लगा, जो कि उसे देखती फ़ौरन से आंखें बंद कर गई थी। उसको इस तरह करता देख आलियान के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट उभरी थी, लेकिन वो फिर उसे नज़रअंदाज करता तकिया सेट करता लेट गया। सुबह इशाल किचन में घड़ी नाश्ता बना रही थी जब आलियान सिर्फ ट्राउज़र पहने और ऊपर तौलिया लपेटे किचन के बाहर खड़ा इशाल से पूछते बोला, तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए और सुबह सुबह नाश्ता बनाने आ गई हो? इशाल जो कि पराठे बना रही थी वो आलियान की बात सुनती उसे देखने लगी और उसकी नज़रें जो कि आलियान पर थी, लेकिन हाथ उसका तवे पर था। वो बिना देखे पराठा पलटने ही लगी थी जब उसका हाथ गर्म तवे पर पड़ा और उसकी एक चीख निकली थी। वो पराठा साइड पर रखती अपना हाथ पकड़े उस पर फूंके मार रही थी। आलियान जो कि वापस पलटने ही लगा था कि अचानक से इशाल की चीख की आवाज़ सुनता किचन में उसकी तरफ बढ़ गया और उसका हाथ दिखता उसे झिड़कने लगा। आंखें कहाँ होती हैं तुम्हारी? देख कर नहीं काम कर सकती? बच्ची हो तुम कि तुम ये सब करती रहती हो? अब जल्दी से रूम में चलो और उस पर कोई चीज़ लगाओ वरना छाले बन जाएंगे। उसकी उंगलियां जो कि फुल चलने की वजह से ब्लैक हो गई थी, उसकी बात सुनती वो बोली, बाद में कर लूंगी, अभी नाश्ता बनाना है, देर हो जाएगी। तुम्हें नाश्ते की पड़ी है? जिसे करना होगा खुद ही बना लेगा या मुलाजमा बना देगी। तुम चलो रूम में। मुलाजमा? वो तो नहीं आती। किचन की जिम्मेदारियां मेरे सिर हैं ना, तो मैं नाश्ता बना कर लगा लूंगी क्रीम, आप फिक्र मत करें। उसकी बात सुनता वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ता उसे खींचता रूम में लाया और उसे बेड पर बिठाता फुल उसके करीब आता गुस्से से बोला, ये जो तुम मेरे आगे ज़ुबान चलाती हो ना, इसको कंट्रोल में रखो और जो मैं कहा करूँ फ़ौरन से वही किया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरे गुस्से का। उसको इस तरह गुस्सा करता देख वो डर सी गई थी और उसे इस तरह डरता देख आलियान के दिल में सुकून सा उतर गया था। वो उससे दूर होता कि कहीं डर की वजह से उसका सांस ही ना थम जाए। वो उससे ट्यूब लगाने का कहता, खुद अलमारी में से शर्ट निकालता, मुलाजमों को प्रेस करने का कहता। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। विशाल जो कि बेड पर बैठी अपने हाथ को देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र अपने सामने खड़े अलियान पर गई, जो कि वाइट शर्ट पहने उसके बटन बंद कर रहा था। उसे देखते ही अचानक इशाल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो जो अपने बालों में हाथ फेर रहा था, उसकी नज़र जैसे ही इशाल पर पड़ी
तो वैसे मुस्कुराता देख उसे पूछते बोला, पागल हो, ऐसे बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो, कोई बात है तो बताओ, क्या पता मुझे भी हंसी आ जाए, क्योंकि आजकल तो मेरी हंसी गायब हो गई है। उसकी बात सुनते ही शाल फौरन से संभली थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही मुझे कोई बात याद आ गई थी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। ये कहता हुआ अपना कोट उठाता बाहर चला गया। तो उसके जाने के बाद इशार अपने सर पर चपत लगाती फिर से मुस्कुराने लगी। क्या हो जाता है पता नहीं, अलियान को देखते ही क्यों इतने अच्छे लगने लगे हैं वो। रात के टाइम सब लाउंज में बैठे आपस में खुशगपियों में मसरूफ थे। मुस्तफ़ा और असद की तो हनीमून की प्लानिंग बन चुकी थी। दोनों कपल साथ जा रहे थे और वो दोनों अलियान को राजी कर रहे थे, लेकिन वो फौरन से इनकार कर गया। नहीं भाई, मुझे इन सब में मत घसीटे, मुझे इन सब का शौक नहीं है। उसकी बात सुनते मुस्तफ़ा ने असद को देखते कहा, असद ये हमारा आलियान ही है ना, जिसे घूमने का बहुत शौक था। आए दिन यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर जाता और हफ्ते में कई बार तो ये बाहर आउटिंग पर भी जाता था कि घर पर इसका दिल नहीं लगता, और अब वही आलियान कह रहा है कि सबका बाहर जाने का मूड नहीं है। हैरत की बात नहीं है। मुस्तफ़ा की बात सुनते असद ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ यार, मुझे भी हैरत हो रही है। चल ना यार, चलते हैं, मज़ा आएगा। तुम्हारी भी तो अभी शादी हुई है, तुम भी चलो हमारे साथ हनीमून पर। भाई क्या मिलता है आप लोगों को मेरा मजाक बनाकर? क्यों आप एक ही बात बार बार दोहराते हैं? आपको पता है इस लिफ्ट से मुझे कितनी अजियत होती है, और आप बार बार वही जिक्र करते हैं। और नहीं जाना मुझे। मेरी कौन सी पसंद की शादी है कि मैं अपनी बीवी के साथ जाकर एंजॉय करूंगा? मैं उससे इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने जाऊंगा। अगर वो मेरी खुशी का बायस होती तो मैं उसके साथ इस घर में भी खुश रह लेता। लेकिन जब मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, तो मैं क्यों उसे बाहर लेकर जाऊं? आप दोनों जाएं और इंजॉय करें। उसकी बात सुनते ही वो दोनों अफसरदा से होते एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुस्तफ़ा आलियान का हाथ पकड़कर उसे समझाते बोला, आलियान अब वो तुम्हारी बीवी है यार, अच्छी लड़की है वो, तुम क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? एक बार उसकी बीवी की हैसियत से देखो तो सही। देखना, खुद ही तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होंगी। बहुत अच्छी हमसफर है तुम्हारी, देखा नहीं तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और पूरे घर वालों का भी, सबकी खुशियों की परवाह है उसे। वाह भाई, एक यही तो चीज़ है उसमें जो आप सब लोगों को अच्छी लगती है। अगर इतनी ही अच्छी थी तो आप कर लेते ना शादी उससे। आप दोनों में से किसी ने क्यों नहीं की? आपने उसकी छोटी बहनों को चुना और अब मुझे सिखा रहे हैं। आप तो इन इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो मुझे भी पता है कि उससे सिर्फ घरदारी आती है और कुछ भी नहीं। ये कहते ही उसने उन दोनों को खामोश करा दिया था। सच बात ही तो थी, वो सिर्फ उन्हें काम की हद तक ही सुलझी हुई लगती थी, वरना वो इतनी कोई खुद को बना कर रखने वाली नहीं थी कि कोई एक नज़र में देख कर उसे अपने दिल में बसा लेता। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे जब वो सबको चाय देती आलियान के हाथ में कॉफ़ी पकड़ा गई। वो जो नज़रें नीचे किए बैठा था अपने सामने, कॉफ़ी देखता, उसके हाथ से कॉफ़ी लेता, गुस्से से उसे देखता दूसरी तरफ रुख फेर गया। विशाल ने भी उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर ली थी। उसके गुस्से को देखती वो फ़ौरन से वहाँ से चली आई थी कि कहीं वो सबके सामने ही उसकी बेइज्जती न कर दे। वो जो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, असगर साहब उसे वहीं से बैठे आवाज़ें लगा गए, इशाल बेटा, चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने, एक कप और मिलेगा? वो जो बर्तन धो रही थी असगर साहब की बात सुनते ही किचन से चेहरा निकालती मुस्कुरा दी। जी जी मामू, अभी लाती हूँ। उसकी चाय जो पतीली में पड़ी थी और उसे पीने का दिल ही नहीं कर रहा था, वो चाय कप में डालती असगर साहब के पास ले आई तो वो उसके हाथ से चाय लेते उसे देखते पूछते बोले, क्या बेटा हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? बैठो हमारे साथ। सब घर वाले बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और तुम हो कि खाने में लगी हुई हो। कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। जी मामू, मैं बस वो किचन का थोड़ा सा काम रहता है वो करके आती हूँ। ये कहती ही वो फौरन से वहां से चली गई। हुरैन और ज़ारा दोनों हनीमून पर अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी। उन्हें गए कुछ ही दिन हुए थे और पता नहीं कितने दिन वो लोग वहाँ रहते। विशाल पर भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो गई थीं। जहाँ पहले वो 10 बंदों का खाना बनाती, अब वहाँ पर 6 अफराद बाकी रहे थे। अभी भी वो किचन में खड़ी किचन की सफाई कर रही थी जब वो दरवाजे से उनको इंटर होता देख एक नज़र उसे देखती, फिर से अपने काम में लग गई।
इरम जिसने टॉप शर्ट पहन रखी थी और साथ में हैंड बैग हाथ में पकड़े, बालों की तेल पोनी की और ब्लैक ग्लासेस लगाए, वो उतारती हाथ में पकड़ती शाल को किचन में खड़ा देख उसकी तरफ बढ़ गई। अच्छा है खाना ने तुम्हें इस काम पर लगा दिया, इसी लायक हो तुम। हमेशा तुम ऐसे ही घर के काम करती रहना और मैं यहाँ पर आकर मालकिन बनकर रहूंगी। आलियान तो तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं है। देखेगा भी कैसे, हम लड़कियां हैं और हमें तुम्हें देखकर उलझन होती है जैसे तुम्हारा हुलिया है। तो अलियान बेचारे के साथ क्या होता होगा, वो तो बस जहर का घूंट भर कर रह जाता होगा, पर तुम क्या समझोगी। ये कहती वो वहां से जा चुकी थी और उसके जाने के बाद ही शाल उसकी बातों पर गौर करती खुद को एक नजर देखती दिल में सोचने लगी कि क्या वो वाकई इतनी कमतर थी कि हर कोई उससे बातें सुनाकर चला जाता। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी। वो अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करती अपनी थकन दूर करने लगी। ऐसे लगता उसे भी नींद आ जाएगी। नगीन बेगम इरम के साथ तैयार होती बाहर निकली तो इशाल उन्हें एक नज़र देखती फिर से नज़रें नीची कर गई। नगीन बेगम बैग हाथ में पकड़े आगे की तरफ बढ़ती इशाल को देखती बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे और उसके बाद लंच हम लोग बाहर से करके आएंगे। तुम हमारे लिए कुछ मत बनाना, वैसे भी सफ़िया भाभी भी बाहर जा चुकी हैं, बाकी सब तो ऑफिस हैं। तो तुम फ्रिज में कोई सालन पड़ा हो तो वो गर्म करके खा लेना और खाना मत बनाना। चलो इरम, इशाल को ताकीद करती हूँ अपनी भांजी के साथ बाहर चल दी। आज पहली बार इशाल को खुशी हो रही थी कि कम से कम उसे आज दोपहर का खाना नहीं बनाना था। अभी वो बैठी इसी खुशी में खुद को रिलैक्स करती रूम में जाने का सोच ही रही थी कि आलियान जो कि अभी ऑफिस से आया था वो रूम में जा रहा था कि जैसे ही उसकी नज़र लाउंज में बैठी इशाल पर पड़ी तो वो उसे देखता जूस लाने का कहता खुद रूम की तरफ बढ़ गया। इशाल उसके लिए फ्रिज से जूस निकालती ग्लास में डालती उसके लिए रूम में लाई तो वो जो कोट उतार कर सोफे पर फेंकता अपने सामने जूस लिए खड़ी शाल को देखता उसके हाथ से जूस पकड़ता गर्मी की वजह से घटाघट पी गया था। वो अपनी टाई की नाट ढीली करता शाल को देखते बोला, यार इसी की कूलिंग बढ़ा दो, ऐसे लगता कमरा आग की तरह झुलस रहा है। क्या तुम रूम में नहीं होती जो एसी ऑफ किए रखती हो, इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम एसी तो ऑन रखा करो। उसकी बात सुनती वो एसी की कूलिंग बढ़ा गई। अच्छा मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाकर फ्रेश होता टॉवल लपेटे बाहर निकला तो सोफे पर रखा अपना ड्रेस उठाता पहन कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल को खुश्क करता और साइड टेबल पर रखा मोबाइल हाथ में पकड़े बेड पर बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगा। ईशाल जो कि थकावट की वजह से सोफे पर लेट गई थी, अलियान मोबाइल पर से एक नज़र हटाता अपने सामने लेटी इशाल को देखते बोला, इशाल खाना ला दो, भूख लग रही है मुझे। इशाल जो कि आंखें मूंदे लेटी थी अलियान की बात सुनती हैरत से उसे देखने लगी। उसे इस तरह कहता देख वो उससे पूछते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ गलत कह दिया है क्या मैंने। खाना ही मांगा है, जाओ ला दो। वैसे बनाया क्या है तुमने दोपहर के खाने में। कुछ नहीं बनाया। उसकी बात सुनता वो हैरत से उसे देखने लगा, क्या मतलब कुछ नहीं बनाया, फिर लंच में क्या खाएंगे सब घर वाले। वो घर पे नहीं है। कहाँ गए घर वाले। वो बाहर से ही खा कर आएंगे। अच्छा वो तो चली गई हैं, लेकिन तुमने क्या खाना था। वो मुझे भूख नहीं थी इसलिए, लेकिन अभी मैं आपके लिए फ़ौरन से बनाकर लाती हूँ। ये कहती वो जाने ही लगी थी जब आर्यान ने उसे पीछे से रोक लिया। बस क्या गर्मी में ख्वार होगी तुम, और मुझे भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही, इसलिए बाहर से कोई कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। ये कहते ही वो बाहर से खाना मंगवा गया। कुछ ही देर में खाना आ गया तो वो इशाल को खाना पकड़ाता खुद पर बैठ गया। बेड पर बैठ गया। तुमने नहीं खाना, क्या खाना। नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खाएं, पागल हो। इधर आओ बैठ कर खाओ मेरे साथ, अगर मेरे साथ नहीं खाना तो अलग से निकाल लो अपने लिए। वो जो उसकी तरफ ही देख ही नहीं रही थी उसकी बात सुनती नजरें नीची किए बोली, नहीं आप खाएं, अगर भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी। उसकी बात सुनता आलियान गुस्से में बोला, इशाल कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे सामने इनकार मत किया करो किसी चीज़ से। और क्या कुछ गिरा हुआ है कि नीचे जो सुबह से फर्श को घूरे जा रही हो, मेरी तरफ देख कर बात नहीं कर सकती तुम। उसकी बात सुनते ही शाल उसकी तरफ देखने लगी। काँप रहे थे, पता नहीं कैसे वो निवाले तोड़ रही थी। आलियान जिसकी नजरें शाल के हाथ पर थीं वो उसे इस तरह कामता देख मुस्कुराते बोला, मैं कोई जिन नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा और तुम इतना डर रही हो, रिलैक्स होकर बैठो और आराम से खाना खाओ। ये कहता वो फिर से खाना खाने लगा, लेकिन इशाल उसके लिए सब बहुत मुश्किल था क्योंकि पहली बार वो आलियान के इतना करीब बैठ कर खाना खा रही थी। और उसे अजीब भी लग रहा था कि आज किससे आलियान उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिला रहा है, वरना तो कभी उसने उसकी परवाह ही नहीं की थी। और यहाँ थोड़ा-सा खाना खाता अपने हाथ साफ करता साइड पर हो गया तो विशाल उसे देखती ही पूछते बोली, आप खाना क्यों छोड़ के आई। उसकी बात सुनता वो मुंह बनाते बोला, मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हारी खाने की आदत हो गई है ना, इसलिए अब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। उसको इस तरह मुस्कुराता देख विशाल उसे देखती हैरत से बोली, तो मैं अभी बना कर लाती हूँ ना आपके लिए, मैंने कहा तो था कि मैं बना देती हूँ लेकिन आपने ज़बरदस्ती बाहर से ऑर्डर कर लिया। अगर आपको आना था तो आप मुझे कॉल करके बता देते, मुझे क्या पता था।
भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए घर का खाना खाने के लिए मैं आ गया। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है आपको इस तरह भूखा देख। उसको इस तरह फ़िक्र करता देख वो उसे देखते बोला, "कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, तुम रिलैक्स होकर खाना खाओ।" ये कहता वो तकिया सेट करता लेट गया। अचानक उसे लेटे बात याद आ गई तो वो विशाल को देखता उससे पूछते बोला, "मॉम तुम्हें नहीं लेकर गई शॉपिंग पर?" उन्होंने नहीं कहा था या तुम खुद नहीं गई? उन्होंने तो कहा था। उसकी बात सुनता वो उसे देखते बोला, "ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने तुम्हें नहीं कहा होगा, मैं जानता हूँ मॉम को।" उसकी बात सुनते शाल दुखी लहजे में बोली, "जब आपको पता था तो फिर पूछा क्यों? बस तुम्हारा जवाब सुनने के लिए कि तुम मेरी माँ की शिकायतें लगाती हो।"